So now let's try to finish off with the YouTube clone, and this is what we have to complete now, the sidebar. Now, as discussed last time, if we are having data in one single row, like we had here one row, so what did we use for this? Display flex, correct? Is my screen visible to you all? What was the flex direction? Was rows, right? Now same thing over here also we have to make for the sidebar. That is, it's a single row, right? So here also we can use what? Display and what would be the flex direction now? That will be column. Okay. So we can have a main called as sidebar. Okay. So this should be our main parent. Okay. Then in each sidebar I will have one sidebar item. Okay. So this red part will be, I'll have multiple what? Sidebar item, sidebar item, and then in each sidebar item I'll be having an image and a text. Image and text. Okay. So we have, these are all divs, right? These are all divs. So you can give them classes. So this is a div whose class equals to sidebar. Similarly here also, these are also divs whose class equals to sidebar item. And now inside that two divs we will have the actual image and the text, some p tag. Okay. So how many sidebar then will be, how many, what do you say, sidebar items will we be having? 1 2 3 4 5 6, right? So this entire stuff will be copy pasted 6 times. Blah, blah. Okay, so let's start. Okay, I go to my index.html. Just after the header, we have this class header. Just underneath that we'll have one more div and we'll give it class as sidebar. Okay, now we have this sidebar. Now inside this sidebar we'll have one more div and we'll give it what? Sidebar item. And now in the sidebar item we will have one image whose
src we will get it from / YouTube images, and which is the first image, home image. So icons and here home.sqh. So we'll have an image and we'll have a p tag. We'll say home in capitals, no, like this. So like this I'll have how many sidebar items? 2, 3, 4, 5 and 6. And after home what do we have? Explore. Explore. After explore what are we having? Subscription. After subscription what are we having? Originals. After originals, YouTube music. Someone the mic is on, looks like. And then we have library. Okay. So now if I save and run this, let's check how this will look. So now as we have not done any settings, see it is looking like this. It is showing all this over here. So now what we have to do, we are going to make this sidebar as display flex and flex direction. So we'll set the sidebar as display flex. तो यहाँ पर जाएंगे और साइड बार को कर देंगे DF और कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे, ठीक है। जैसे ये होता है तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है UI में, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आई एम कमिंग बैक ओवर हियर। तो साइज़ सबके देखने ना, साइज़ बहुत हो गए। सो मुझे अभी जो इमेज है साइड बार आइटम के अंदर, साइड बार आइटम क्लास के अंदर जो इमेज है उसको टारगेट करना है। तो कैसे करेंगे? साइड बार के अंदर स्पेस देके इमेज, उसका हम हाइट सेट कर देंगे, ठीक है। लेट्स से 60 पिक्सेल्स का हाइट सेट कर देंगे। कंट्रोल एस किया, अब देखो आ गया, पूरा अलाइन हो गया वो कॉलम्स के अंदर। ओके, अब जो है, अब ये जो साइड बार आइटम है, ठीक है, इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा ताकि हम लोग इनको अलाइन कर सके हॉरिजॉन्टल आइटम सेंटर। तो ये जो साइड बार आइटम वाला भी क्लास है इसको भी DF कर दो और कर दो अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये टेक्स्ट और ये सब दोनों इमेजेस बराबर सेंटर में आ जाए। होम के सेंटर में आ जाए होम, और एक्सप्लोर के सेंटर में आ जाए। ओके, सबका मैंने होम ही लिख दिया, क्या वो चेंज नहीं किया क्या? ओके, as we are focusing on the sidebar, let's try to target the sidebar. तो ये होम था, ये तो होम है, ये एक्सप्लोर है, यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शंस करना पड़ेगा।
ये ओरिजिनल्स है, तो यहाँ पर ओरिजिनल्स करना पड़ेगा। ये यूट्यूब म्यूज़िक है, तो यूट्यूब म्यूज़िक करना पड़ेगा। और ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हुआ होगा यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं सेव करता हूँ अभी, तो देखो अपने इसमें देखो ये कहाँ जा रहा है, होम के बाजू में आ जा रहा है ना ये। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, जो ये वाला है साइड बार आइटम है, इसको भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। और अलाइन आइटम्स कॉलम्स कर देंगे। क्या कर देंगे, अलाइन आइटम्स डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, ताकि वो भी एक के नीचे एक आ जाए। तो कंट्रोल एस, साइड बार आइटम को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया आइटम, और इसको अपन कर देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, आ गया अभी, बराबर सेंटर में आ जाए। ओके ओके, अब ये जो मेन वाला जो है साइड बार, ठीक है, अभी एक और चीज़ अपने को सीखना है आज, वो है पोजीशनिंग। क्या सीखना है, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होता है, दो टाइप के, तीन टाइप के हैं। एक है पोजीशन फिक्स्ड। क्या है, पोजीशन फिक्स्ड है, और पोजीशन रिलेटिव है, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है, ये ब्राउज़र में उतनी जगह ले लेता है। किधर, इट इज़ फॉर द ब्राउज़र। सो इन द ब्राउज़र इफ़ आई वांट सर्टेन स्पेस टू बी रिजर्व्ड, जैसे मैंने अगर ये साइड बार के लिए इतनी स्पेस ब्राउज़र में रिजर्व कर ली है, अब मैं कितना भी स्क्रॉल करूँ, ब्राउज़र का ये स्पेस जो है वो उस कंपोनेंट का रहेगा। और पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, अगर एक कंटेनर है, जैसे एक अपना इमेज है, ये इमेज है ना, ये इमेज के अंदर ये जो टाइमिंग है, ये सिर्फ उस कंटेनर के अंदर है, राइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो ये अगर इमेज ऊपर जाएगी तो साथ में ये भी ऊपर जाएगा ना, टाइमिंग। और अगर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ, तो ये जो लेफ्ट में है साइड बार, दिस विल नॉट मूव, करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन फिक्स्ड। तो अभी अपने को इसको पोजीशन फिक्स्ड कर देना है। ओके, साइड बार को हम लोग, साइड बार को चेक करते हैं कि कितनी जगह ले रहा है ये। तो साइड बार को एक बॉर्डर दे देते हैं, 2 पिक्सेल्स रेड, 2 पिक्सेल्स सॉलिड रेड। तो देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरी इतनी जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ये इसको अपने को थोड़ा टेपर करना है, नैरो डाउन करना है। तो इसको हम दे देंगे, विड्थ दे देते हैं इसको, लेट्स से 90 पिक्सेल्स का। ठीक है, 90 पिक्सेल्स के अंदर ये आ रहा है। यूट्यूब म्यूज़िक थोड़ा हिल रहा है, 120 पिक्सेल्स का कर दिया, अब ठीक है। ये सेंटर में भी आ रहे हैं। ओके, अब ये एक एक जो आइटम है, इस पर जब होवर करेंगे तो ये कलर चेंज करेगा ना, क्योंकि अभी तो कुछ कलर चेंज नहीं कर रहा है ये। तो क्या करेंगे, साइड बार आइटम जो क्लास है, इसका एक सूडो क्लास बना लेंगे, होवर। वो क्या कर देंगे, इसमें जो इसका BGC है वो थोड़ा सा ग्रे
ग्रे कर देंगे। और इसे सेव करता हूँ मैं। दिख रहा है ज़्यादा डार्क हो रहा है ये, तो आप अपना एक लाइटेस्ट ग्रे भी यूज़ कर सकते हो। आप कुछ जो भी है, ओके। जैसे आप उसको कलर चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अब ये मैंने इसको दे दिया। अब ये जो जगह है इतनी, ये फिक्स रहेगी ब्राउज़र के ऊपर, किसके लिए? इस साइड बार के लिए, राइट। तो उसको हम बोल देते हैं पोजीशन फिक्स्ड। कहाँ गया साइड बार? ये रहा। तो क्या बोल देते हैं? पोजीशन पोजीशन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स्ड में फिर अपने को बताना पड़ेगा अपने को इसको, कि अब इसको कहाँ से, लेफ्ट से कितना छोड़ रहे हैं? 0, ठीक है। और टॉप से इसको हम जितना, ये इसकी हाइट है क्या इसको, whenever you are fixing it, तो you have to tell कि हम लोग कितनी, कौन से बॉर्डर से कितना लिंक कर रहे हैं। तो लेफ्ट से इसका हाइट स्पेस 0 है, टॉप से हम उसको कितना स्पेस दे रहे हैं जिसको हम फिक्स कर रहे हैं, तो टॉप से कितना स्पेस छोड़ रहे हैं उसको, जितना हेडर की विड्थ है। लेफ्ट से 0 है, बस 2 कॉर्नर से क्या तो भी काफ़ी है। तो हेडर की हाइट कितनी है? हेडर की अपन ने हाइट तो स्पेसिफाई नहीं किया है, उसके इमेजेस को अपन ने, ओके, 90 पिक्सल्स का अपन ने उसके इमेजेस की हाइट दी है। लेट से 100 पिक्सल रहेगा उसमें। जब आप उसको पोजीशन फिक्स्ड करोगे तो आपको बोलना है कि कहाँ कस करना है। तो लेफ्ट से 0 और टॉप से 100, इतना हम लोग पोजीशन फिक्स कर देते हैं उसको। तो अब ये जब देखो, ठीक है, तो इसको इतना जगह मिल गई। यहाँ पर उसने अपनी जगह बना लिया। अब ये पेज कितना भी ब्राउज करें हम लोग, ये जगह हिलेगी नहीं वहाँ से। चाहो तो उसको आप बढ़ा सकते। तो अभी ये जो ग्रिड है इसको आप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा गैप दिख रहा है 100 का। तो अगर इसको हम 95 करें, 90 करें तो पूरा टच हो गया हो, ठीक है। अब ये जो हमारा, इसकी हाइट और बढ़ा देते हैं फिर। अभी इसकी हाइट जो है, जो उसकी विड्थ है, लेट्स से हाइट इसकी अगर हमने कर दिए 700 px कर दिया, तो फिर अपने को यहाँ पर अलाइन इनको वो करना पड़ेगा, फिर जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा ताकि ये जस्टिफाई कंटेंट हो जाए। लेट्स से स्पेस बिटवीन, तो ये सारे का सारा 900 तक आ गया और उनका स्पेस बिटवीन का जस्टिफाई हो गया। और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, इसको 900 कर सकते हैं। तो अब देखो ये इतनी जगह ले लिया इसने, और अपना भी ग्रिड इतनी जगह छोड़ के चालू होगा। जो हमारा ग्रिड, इमेज ग्रिड, जहाँ पर हम लोग इमेजेस दिखा रहे हैं, ये वीडियो ग्रिड। तो वीडियो ग्रिड अभी जितनी इसकी विड्थ अपन ने दिया है, कितनी विड्थ दी है हमने इसकी, इसकी विड्थ हमने दिए है 120, उसको 100 कर दो। 100 में भी शायद काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब म्यूज़िक की वजह से इशू आ रहा है। तो यूट्यूब म्यूज़िक का जो पी टैग है उसका फॉन्ट का वेट कम कर देंगे। तो जो साइड बार आइटम में पी टैग है, अपने साइड बार आइटम के अंदर इमेज को टारगेट किए हैं, वैसे हम लोग साइड बार आइटम के
ई टैग को भी टारगेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट साइज है, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे 12 px किया तो क्या होगा, 12 पिक्सल किया तो यूट्यूब म्यूज़िक आ गया, दिख रहा है। 12 से तो आ गया, 14 से भी आ जाना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब म्यूज़िक अभी भी आ रहा है। हाँ, ये ठीक है। और अभी ये जो ग्रिड है, इसको हमको कितना छोड़ना है फिर जगह, क्योंकि 100 का विड्थ तो कितना है, ओके। तो उसको मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 100 पिक्सल है। इसको वीडियो ग्रिड कौन सा वाला है उसका पेरेंट, वीडियो ग्रिड। वीडियो ग्रिड को मार्जिन लेफ्ट दे दो। कहाँ है वीडियो ग्रिड का, या क्या देते उसको, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, ताकि ये उतना पिक्सल छोड़ के हो जाए, दिख रहा है। जो उसका रेडनेस था वो रेडनेस निकाल दो अभी, जो अपन ने इसको साइड बार को रेड दिए थे, सब देखने के लिए कितनी जगह ले रहा है वो, तो उसका रेडनेस निकाल सकते हैं। ये चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ओके, मेकिंग सेंस नाउ, सी दिस। तो ऐसे आप लोग अपना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये देखो अभी डिस्प्ले फिक्स हो गया अभी। अब आप इसको जितना भी चाहो आप उतने डाल दो, जैसे अपने वीडियो कार्ड के अंदर, ये अपने वीडियो कार्ड है ना। अब मैंने लेट्स से कि वीडियो कार्ड बहुत सारे डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बहुत सारे डाल दिए मैंने। अब कंट्रोल एस हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये तो स्क्रॉल होगा, पर ये लेफ्ट में जगह फिक्स हो गया इसकी। आप देखो साथ में ये भी देखो साथ में जा रहा है, फिर इसको भी क्या कर देंगे, डिस्प्ले फिक्स कर देंगे ना इसको भी। यूट्यूब का ये जो साइड है, तो हेडर है, उसको भी क्या कर देंगे, फिर पोजीशन क्या कर देंगे उसकी भी, पोजीशन फिक्स कर देंगे। तो जो तेरा हेडर, क्या कर देंगे इसको, पोजीशन पोजीशन फिक्स्ड करने के लिए उसको अपने को देना पड़ेगा, उसको टॉप से कितना ले रहा है ये, 0 है ना। टॉप से 0 पिक्सल है इसका, और लेफ्ट से कितना है, अगर इसको ऊपर लेते हैं तो लेफ्ट तो टॉप लेफ्ट से भी 0 ही है ना ये, क्योंकि ये ऊपर ही है उसका। तो लेफ्ट से भी 0 है, और राइट से भी 0 है। तो ये फिर अपनी जगह फिक्स ले लें। तो फिर अभी वो जो ये है डिस्प्ले ग्रिड है, उसका अब इसकी हाइट कितनी दी आपने, 90 दी है ना। सो अभी जो डिस्प्ले ग्रिड है, डिस्प्ले ग्रिड का मार्जिन टॉप भी चेंज करना पड़ेगा ना, वरना उतना कट जाएगा वो। डिस्प्ले ग्रिड का तो अपने मार्जिन टॉप भी चेंज करना पड़ेगा फिर अपने को। कितना जितना इसकी हाइट दी अपन ने 90 पिक्सल, अब कंट्रोल एस कर दिया। अब ठीक है, अब देखो ये ऐसे जा रहा है, ये इसका अपने को बैकग्राउंड कलर जो है वो देखो उसके अंदर जा रहा है, राइट। वो जगह तो फिक्स हो गई उसकी, बट वो उसके
अंदर से ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, उसका जो z इंडेक्स है वो हाईएस्ट कर देंगे, z इंडेक्स उसका हाईएस्ट कर देंगे अपन, लेट से 100, ताकि उसको टॉप पे ही मिले, टॉप तो है ही। तो उसका फिर अपने को बैकग्राउंड कलर वाइट करना पड़ेगा, अभी वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना। जगह फिक्स तो हो गई उसकी, बट ये उसके अंदर से जा रहा है ऐसा। तो अगर हम लोग हेडर है, उसका BGC वाइट कर दे, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। अभी जो उसको उसकी जगह फिक्स है, वो चेंज नहीं हो, तो ये उसको ओवर हो रहे तो उसको उसको ओवरराइड नहीं कर रहे, करेक्ट। So this is sort of whatever we have learned. Okay. Now if I want to show the timing, and the timing should be only relative to this container. So what will I use over there? This position relative है ना. So अभी जो टाइमिंग वाला था, जैसे ये वाला है ना, तो ये जो 1420 ये सिर्फ किसके लिए है? ये 1420 ब्राउजर की जगह पे फिक्स है क्या? नहीं ना, सिर्फ उस वीडियो ग्रिड के लिए ना, सिर्फ उस वीडियो कार्ड के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये थंबनेल रो है ना, ये इमेज है ना, इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एक पी ले लेते हैं, डाल देते हैं 1420, ठीक है। अब ये जो पी है किस कौन से क्लास के अंदर है, थंबनेल रो के पी टैग में, हम डायरेक्टली उसको ऐसे स्टाइल कर सकते हैं, इस क्लास का ये पी टैग में, इसका BGC क्या कर दो, ब्लैक कर दो, क्या कर दो, जो कंट्रोल S करते हैं, इससे क्या आता है, lots of apps open on my system looks like, ओके तो इट्स नॉट इवन विजिबल, ओके इट्स रिफ्रेश, ओके। तो यहाँ पर देखो ब्लैक कर दिया है उसने, नीचे आ रहा है, तो अभी उसको रिलेटिव करना पड़ेगा, और उसका फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे, कलर क्या कर देते हैं, वाइट। देखो अभी तो ये 1420 आ रहा है, बट मुझे उसको क्या करना है, फिक्स करना है किधर, यहाँ पर, यहाँ पर इसके इधर ना, कोड के पास इधर। तो फिर उसके पेरेंट को हमेशा करना पोजीशन रिलेटिव। तो पेरेंट कौन है इसका, जिसको हम जहाँ लगा रहे हैं, ये यहाँ पर हम लगा रहे हैं, इसका पेरेंट कौन है, थंबनेल रो है ना। थंबनेल रो को सर्च करो, थंबनेल रो को, ओके यहाँ पर थंबनेल रो था, राइट, थंबनेल रो नहीं है क्या, थंबनेल रो एक ही बार है, और इसमें पी टैग है बस, ये तो बार बार आएगा क्योंकि इतने अपन ने इमेज डाल दी ना, ओके यहाँ चाहिए, तो इसको अनकमेंट कर दो, इसको भी स्टाइल करना है, और क्या बोलना है इसको, पोजीशन, तो पेरेंट को बोलना हमेशा पोजीशन रिलेटिव, क्या बोलना, यस पोजीशन रिलेटिव बोलना, जो जहाँ पर आपको रिलेटिव करना है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को इसको जहाँ डालना है, क्या डालना है इसको, ये पी टैग को ना, तो कर देना पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या कर देना उसको कर देना पोजीशन एब्सोल्यूट,
तो क्या कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसका फिर बताना उसके कंटेनर से किधर है वो, तो राइट से, लेट से मैं देता हूँ उसको, राइट से 10 पिक्सल और बॉटम से 20 पिक्सल, है ना। तो वहाँ पर अपन उसका पोजीशन फिक्स कर, दिख रहा है अभी। तो वो सिर्फ उसी के लिए रहेगा बस, जब भी वो पेरेंट होगा स्क्रॉल तो ये भी साथ में स्क्रॉल होगा उसके। तो जब ये पेरेंट स्क्रॉल होगा तो साथ में वो भी जाएगा, जा रहा है, समझा। सो नाउ वी हैव डन अ ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स विच वी वांटेड टू कवर। ना भी तुम जितना इसके अंदर स्पाइस ऐड कर सको, जितना तुम और उसको एनहेंस कर सको, वो आपके ऊपर है। हेडर को मैंने बैकग्राउंड कलर बॉर्डर वाइट, हेडर को अपन ने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिया, वो निकाल देते हैं, वो बॉर्डर दिया है ब्लैक कलर का, कंट्रोल है। ओके, इसको भी क्या करते हैं, ठीक है अभी। ये so we've covered, see, and as it is going along with that. So you can add multiple p tags like that for each. तो हर एक का एक p tag आप लेके क्या कर सकते हो, थंबनेल रो में डाल सकते हो। कंट्रोल एस किया, तो सबके आगे p tag अपने आप उसी जगह पे आ रहा है। उसका ब्राउजर से कोई लेना देना नहीं है, उसका उससे कंटेनर से लेना देना है। तो कंटेनर बनेगा डिस्प्ले रिलेटिव, और जहाँ आपको करना है वो होगा डिस्प्ले, वो होगा पोजीशन रिलेटिव, और जहाँ आपको करना है, जिस एलिमेंट को करना है वो होगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन फिक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, this also we have covered. Now if you all want, you all can just try to enhance this, whatever you all want to do. Making sense? So this